Hello everyone. We are doing chapter number 5, Principles of Inheritance and Variations, part 2, class 12th, Biology. Topics to be covered in this video are non-Mendelian inheritance and sex determination. What do you mean by non-Mendelian inheritance? Means there are certain characters which do not follow the Mendel's laws. Let us see what are these. First, incomplete dominance, codominance, multiple allelism, polygenic inheritance and pleiotropy. Let us study one by one all of these. Incomplete dominance. It is the inheritance in which the offspring shows intermediate character between the two parental characteristics. Means, if we take a plant snapdragon, there are two types of flower you can see, red flower plant and the white flower plant. As per Mendel's, in first generation we should get all red flowers, but instead of getting all red flower in first generation, we get intermediate color. रेड एंड पिंक का बीच का कलर हमें मिलता, रेड एंड वाइट का बीच का कलर मिलता है, दैट इज पिंक कलर. ओके, so flower color in snapdragon and Mirabilis jalepa is the example of incomplete dominance. Here cross between homozygous red यानी capital R and white small r produces pink color flower. Okay, let us see what happened. This is the cross. Red flower है यहाँ पर R, white flower है small r. Make the gametes, you will get two gametes from red flower, capital R वाला gamete and capital R वाला gamete, and white flower से भी will get the two gametes. Cross them. As a result, we get capital R and small r plants genotypically, but phenotypically they are pink, not red, as per Mendel's. Okay, now cross these F1 generation plant. कैपिटल आर स्मॉल आर वन साइड लिखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर वन साइड लिखिए. ओके, एंड मेक द क्रॉस. यू विल गेट रेड फ्लावर वन प्लांट मिलेगा, टू पिंक कलर के फ्लावर्स मिलेंगे और वन वाइट कलर का फ्लावर मिलेगा. मीन्स फिनोटिपिक रेशो जो दिख रही है, वन रेड, टू पिंक, वन वाइट. एंड जीनोटाइप ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो कैपिटल आर वन प्लांट है, कैपिटल आर स्मॉल आर टू प्लांट्स हैं एंड स्मॉल आर वन प्लांट है. मीन्स फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम, 1:2:1, while in case of Mendel's laws of dominance the phenotypic ratio was 3:1 and genotypic ratio was 1:2:1. So this is the example of incomplete dominance. The red color is incomplete dominance. The phenotypic and genotypic ratios are same. This means that R was not completely dominant over small r. Next example, next character will study codominance. It is the inheritance in which both alleles of genes are expressed in a hybrid condition. अभी तक हम देख रहे थे कि एक ही जो एलील था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था इन द हाइब्रिड कंडीशन, but in codominance both the alleles they can express in a hybrid condition. इसका codominance का example है ABO blood grouping in human beings. What happened? ABO blood group is controlled by a gene I. लिख लीजिए, I gene से कंट्रोल हो रहा है. And what this I gene is doing? I gene is producing a sugar antigen which is showing in the diagram with the yellow color circles and triangles over the RBCs. It controls the production of polymer antigen that protrude out from the plasma membrane. Plasma membrane से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें these antigens. The gene has 3 alleles. Important है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई जीन के 3 एलील्स हैं, अदरवाइज आप देख रहे हो कि अभी तक हर जीन के 2 एलीलिक फॉर्म दिखाई दे रहे थे. IA, IB and small I. These are the 3 alleles of gene I.
IA एंड IB दोनों के अंदर टेंडेंसी है, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन एंटीजन. IA can produce A antigen, IB can produce B antigen. And if both are present, IA and IB both are present in any organism, in any man or human beings, then both antigens are formed, A and B. And अगर इनमें से दोनों में से कोई भी present नहीं है, only I is present, then no sugar is formed, no antigen is formed. See this blood group table, very important table. सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा इसमें से. ब्लड ग्रुप ए है, सो व्हाट टाइप ऑफ जीनोटाइप? IA एंड IA हो सकता है, या IA या स्मॉल I हो सकता है, बिकॉज स्मॉल I इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी एंटीजन. ओके, इंपॉर्टेंट बात ये देख लीजिए कि 3 एलील्स में से ओनली 2 एलील्स आर प्रेजेंट. IA है या IA स्मॉल I है, then the blood group is A because antigen A is produced. IB या IB स्मॉल I है तो भी ब्लड ग्रुप B होगा. और अगर IA and IB दोनों हैं, then both the antigens are formed A and B and the blood group is AB. This is the example of codominance. Blood group AB is the example of codominance. And if the genes are small I, no antigen will form and the blood group is O. और one more important thing is, जिसमें भी blood group A होगा यानी एंटीजन A होगा, उस पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडी B होगा. ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी A होगा. अगर ब्लड ग्रुप A B है, दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, देन देयर विल नॉट बी एनी एंटीबॉडी. नो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन AB ब्लड ग्रुप. एंड O में नो एंटीजेंस बट बोथ द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट. तो एंटीबॉडी करती क्या है? दे फाइट. अगर ब्लड ग्रुप A है, उसको ब्लड ग्रुप B दे देते हैं, तो B एंटीजन पहुंच गया बट उसके पास B एंटीबॉडी थी, तो B एंटीजन ने B एंटीबॉडी से फाइट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया उनको. तो ब्लड ग्रुप A वाला पर्सन ब्लड ग्रुप B नहीं ले सकता बिकॉज उसके पास एंटीबॉडी B है. ब्लड ग्रुप B वाला पर्सन ब्लड ग्रुप A नहीं ले सकता क्योंकि उसके ऊपर एंटीबॉडी A है टू फाइट विद द एंटीजन A. एंड ब्लड ग्रुप AB वाला जिसमें दोनों एंटीजन हैं, वो A B दोनों ले सकता है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज. कोई फाइट करने के लिए है ही नहीं. A भी चला जाएगा ब्लड ऑर्गेनिज्म के अंदर तब भी वो फाइट नहीं कर सकता, B भी चला जाएगा तो भी कोई फाइट नहीं कर सकता. तो यानी AB ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबका ब्लड ले सकता है. एंड ब्लड ग्रुप O, इसमें तो दोनों एंटीबॉडीज हैं, ये तो सबसे फाइट करेगा. A एंटीजन आ जाएगा तो A से फाइट करेगा, B एंटीजन आ जाएगा तो B से फाइट करेगा, और AB वाला ब्लड ग्रुप आ गया तो उससे भी फाइट करेगा बिकॉज इट इज हैविंग बोथ द एंटीबॉडीज. बट इट कैन गिव द ब्लड टू ऑल क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है. ठीक है, किसी और ब्लड में जाकर ये किसी से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि एंटीजन नहीं है इसके अंदर. क्लियर? सो दिस इज द यूनिवर्सल डोनर. O is a universal donor, AB is a universal recipient. यहाँ पर आपका पूरा टेबल बना हुआ है किस तरह का जीनोटाइप होगा. अगर पेरेंट में IA है, दूसरे पेरेंट में IA है, ब्लड ग्रुप IA होगा तो ब्लड ग्रुप जो टाइप होगा वो A होगा. IA स्मॉल I है तो A ब्लड ग्रुप होगा. IB है तो ब्लड ग्रुप B. IB स्मॉल I है तो ब्लड ग्रुप B. IB है तो ब्लड ग्रुप AB. IA है तब भी ब्लड ग्रुप AB. एंड स्मॉल I है तो ब्लड ग्रुप O होगा. ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम्स में भी आता है बहुत बार कि फादर जो है उसका जो जीनोटाइप है वो है IA एंड स्मॉल I. मदर का जीनोटाइप है IB और स्मॉल I. तो व्हाट विल बी द जीनोटाइप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स? व्हाट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यू कैन सी इन देयर ऑफस्प्रिंग्स? फादर का वन साइड ऊपर लिख लीजिए IA एंड I, इसके स्पर्म्स सेपरेट हो गए और सब दोनों जो है इसके जो एलील्स हैं वो सेपरेट हो गए इन द डिफरेंट स्पर्म्स. IA गो इन वन गेमिट, स्मॉल I विल गो इन द अदर गेमिट. मदर के भी जो एग्स बनेंगे तो उनमें भी दे गेट सेपरेटेड IB एंड स्मॉल I एंड जस्ट मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. द ऑफस्प्रिंग में विल हैव IA-IB combination, IB small I combination, IA small I combination
and small I combination mean all type of blood group can be there in their offsprings if the father is IA and small I, mother is IB and small I. ओके और उल्टा क्वेश्चंस भी आ सकता है, इफ द ऑफस्प्रिंग्स हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ मदर एंड फादर. तो IA भी होना चाहिए, IB भी होना चाहिए और स्मॉल I भी होना चाहिए, तभी सारे टाइप के ब्लड ग्रुप्स आपको मिलेंगे. तो फादर विल बी IA स्मॉल I, मदर विल बी IB स्मॉल I, देन यू गेट ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन देयर ऑफस्प्रिंग्स. बट इफ द फादर इज AB blood group and mother is O blood group, what type of combination you will get? You will get the offspring may be of blood group A or blood group B, because A and B are dominant, they can express their character. Multiple allelism भी blood group में ही आता है example इसका, यानी one character is controlled by allele, इसके 3 allelic forms हैं. It is the presence of more than 2 alleles of a gene. Instead of only 2 alleles, there are 3 alleles, IA, IB and small I. But grouping जब होती है एक individual में only 2 alleles are present, but multiple alleles can be found only in the population. देखो नीचे diagram बना हुआ है, नीचे boy is having IA, the girl is having IA small I, IB, IB small I, IA, IB and small I. Population में you can find these multiple allelism, not in the individual. In individual only 2 alleles are present. Polygenic inheritance क्या है? It is the inheritance in which some traits are controlled by several genes. No, एक जीन नहीं है कंट्रोल करने वाला, बहुत सारे जीन्स हैं एक ही करेक्टर को कंट्रोल करने वाले, एक ही ट्रेट को कंट्रोल करने वाले. एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट. It considers the influence of environment. In a polygenic trait, phenotype type reflects the contribution of each allele. हर एलील अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन देगा. जैसे अगर 3 जीन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो हर जीन अपना अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें देगा. ओके, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कैसे दिया हुआ है इसमें. एज्यूम करिए कि 3 जीन्स हैं ABC जो कंट्रोल कर रहे हैं स्किन के कलर को, और डोमिनेंट फॉर्म्स हैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. अगर ये जीन्स तीनों प्रेजेंट हैं इन द कैपिटल फॉर्म, इन द डोमिनेंट फॉर्म, देन द स्किन विल बी द डार्केस्ट. एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ रिसेसिव फॉर्म, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, द स्किन विल बी द लाइटेस्ट. एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, डार्केस्ट स्किन है. स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, लाइटेस्ट स्किन है. और अगर 3 कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C हैं और 3 स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C हैं, 6 में से A कैपिटल B, A कैपिटल है, B कैपिटल है, C कैपिटल है और एक स्मॉल A है, स्मॉल B है, स्मॉल C है, देन द इंटरमीडिएट कलर ऑफ द स्किन विल बी देयर. सो यू कैन फाइंड वेरिएशन इन द स्किन कलर बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. नेक्स्ट इज प्लियोट्रोपिज्म. प्लियोट्रोपिज्म में एक सिंगल जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करता है. अभी तक हम देख रहे थे कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर एक जीन से कई सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं. और ये उनमें होता है जहाँ पर जीन मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है. पूरा मेटाबॉलिक पाथवे ही उस जीन के ऊपर इफेक्टिव है. इन मोस्ट केसेस मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपिज्म इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज. जैसे कि एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं. स्टार्च सिंथेसिस इन P, फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया. फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया दोनों हैं जो हैं द म्यूटेंट जीन हैज अ मैनी फिनोटिपिक इफेक्ट. फिनाइल कीटोन यूरिया में देखिए इफेक्ट क्या क्या दिख सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन द हेयर, स्किन पिगमेंटेशन. ये कितने सारे कैरेक्टर्स, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद द मेन डिजीज आपको दिखाई देंगे. और फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. सिकल सेल एनीमिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. बट यहाँ पर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्टार्च सिंथेसिस इन P. Starch is synthesized effectively by capital B gene. ओके, और इस समय जब स्टार्च बनेगा वो लार्ज साइज स्टार्च बनेगा. और दूसरा स्मॉल बी हो तो
लेस एफिशिएंट स्टार्च सिंथेसाइज होगा और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेंगे। स्टार्च ग्रेन का साइज छोटा होगा, बट अगर कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाए तो ये यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल शो करता है। कैपिटल बी स्मॉल बी में इंटरमीडिएट साइज बनते हैं स्टार्च के। ओके, स्टार्च सिंथेसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि स्नैपड्रैगन में था। ये ध्यान रखिए, देयर आर 2 एग्जाम्पल्स इन योर एनसीईआरटी रिगार्डिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट अब ये देखिए, ये प्लियोट्रोपिज्म कैसे शो कर रहा है कि जो स्टार्च का जो साइज है वो तो बन रहा है, स्टार्च का इफेक्टिव बन रहा है या नहीं बन रहा है, बट जिसमें भी स्टार्च अच्छा बन रहा है उसके जो सीड्स होंगे वो राउंड होंगे। जो स्मॉल बी वाला है उसके सीड्स रिंकल्ड होंगे, बट कैपिटल बी स्मॉल बी जहां आएगा वहां पर सीड राउंड होगा। क्लियर है ये? तो राउंड और येलो, राउंड एंड रिंकल के अकॉर्डिंगली तो ये डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंट को फॉलो कर रहा है, बट स्टार्च के साइज से ये फॉलो नहीं कर रहा। तो 1 जीन इज कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर्स, फर्स्ट द प्रोडक्शन ऑफ द स्टार्च, सेकेंड द शेप ऑफ द सीड। 2 कैरेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड बाय 1 जीन. So now we come to how we determine the sex in different organisms. Autosomes and sex chromosomes. Example देखिए, human beings में there are 46 chromosomes. Okay, 46 chromosomes में 23 pairs are there. Out of this 23 pairs, 22 pairs are autosomes and the one is the sex chromosome. The chromosomes that are involved in the sex determination are called sex chromosome or allosomes. They include X and Y chromosome. Autosomes are chromosome other than sex chromosomes. यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर 22 pairs, 1 pair, second pair, third pair, they are similar to each other, homologous हैं ये, but the last pair is, it can be XX, it can be XY. So these are the sex chromosomes which determine the sex. And number of autosomes are same in male and female. 22 pairs हैं तो 22 मेल में होंगे, 22 फीमेल में होंगे. Hanking in 1891 studied spermatogenesis in some insects. Insects में study कर रहे थे वो spermatogenesis, formation of sperms, and he observed that 50% of the sperm received a structure, a nuclear structure after spermatogenesis, and 50% sperm did not receive any structure. और जो structure उन्होंने 50% sperm में देखा उसको X body कहा, and later on it was called X chromosome. तो Hanking called this structure as X body. मैकेनिज्म 3 तरीके से मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का. पहला है XXXO, XXXY, ZZ एंड ZW. देखिए ये तीनों क्या हैं, किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन करते हैं. XX एंड XO सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन द ग्रास हॉपर. इनके नेम आपको याद रखने हैं. हेयर मेल इज हेट्रोगेमीट, यानी अगर वो गेमीट बनाएगा, अगर उसके गेमीट्स बनेंगे तो दोनों गेमीट्स में अलग अलग होंगे, एक में X होगा और एक में X नहीं होगा. बट फीमेल इज होमोगेमिटिक, दोनों फीमेल गेमिट्स के अंदर X जरूर होगा. ओके, सो 22 प्लस XO, 22 प्लस XX फीमेल है और ये मेल है. XO वाला मेल है, XX वाला फीमेल है. ओके, मेल हेट्रोगेमिटिक का एग्जाम्पल मैन में भी आता है एंड फीमेल होमोगेमिटिक है. यहां पर भी मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में XX होते हैं. ड्रोसोफिला में भी ऐसे ही होता है. ओके, XX एंड XY टाइप जो है, 2 ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला. क्लियर? XY is present in the male, XX is present in the female, both in humans and Drosophila. ZZ and ZW यहां उल्टा आ जाइए. मेल्स आर होमोगेमिटिक, यानी जो गेमिट बनाएंगे वो दोनों एक जैसे होंगे. ZZ, वहां पर XX फीमेल था, यहां पर ZZ फीमेल, ZZ मेल है.
ओके, फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक ZW, वहां पर जो XY था वो मेल था, यहां ZW फीमेल है. तो फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक. 2 different type of gametes are formed in the female. Example are birds, hen. मैन में क्लियर कर लीजिए इसको. और ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये मैंने बता दिया आपको, जिसमें से 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अगर XX है देन इट इज अ फीमेल, व्हेन इफ देयर इज X एंड Y इट इज अ मेल. यहां पर देखो फादर इज हैविंग XY, मदर इज हैविंग XX, सो फादर विल गिव 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स, मदर विल गिव 1 टाइप ऑफ गेमीट. और फ्यूजन जब होगा तो 50% चांसेस आर देयर ऑफ द सन एंड 50% चांसेस आर ऑफ देयर डॉटर. ओके, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म्स बन रहे हैं, मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स. 50% ऑफ द स्पर्म्स आर हैविंग X क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ द स्पर्म्स आर हैविंग Y क्रोमोसोम, and females produce the ovum having all X chromosomes. Fusion करिए इसमें. The sperm determine whether the offspring will be male or female. चेकर बोर्ड बना लीजिए, प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए, ऊपर XX लिख दीजिए, साइड में XY लिख दीजिए, कंबाइन करिए तो यू विल गेट 2 females, 2 daughters and 2 sons. There is an equal probability of fertilization of ovum with the sperm carrying either X or Y. X जो मदर का जो X है, it can combine with the X of the father, then the daughter will be there. If it will combine with the Y of the father, the son will be there. So the sperm determine the sex, not the mother. Sex determination in honey bees, very interesting. It is based on the number. यहाँ पर कोई X और Y chromosomes नहीं है, but the sets of chromosome are responsible for telling the organism is male or female. Fertilized egg है, अगर egg fertilize हो जाता है then it is the queen or a worker. और unfertilized egg से males बनते हैं, drones बनते हैं. Diploid queen है, haploid drones हैं. ठीक है, डिप्लॉयड क्वीन से अगर वो इसमें हेप्लॉइड बनेगा, अगर यहाँ पर देखिए नीचे वाला डायग्राम देख लीजिए, फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स हैं, मेल में 16 क्रोमोसोम्स हैं. मियोसिस होकर गेमीट्स बनेंगे 16 एंड 16. मेल्स में तो माइटोसिस होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा इसमें, क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम. 16 हैं क्रोमोसोम्स, और जब ये कंबाइन करेंगे 16 ऑफ द फीमेल कंबाइन विद द 16 ऑफ द मेल, देन female will be formed, 32 chromosomes will be there, then it will be a female. और अगर only 16 chromosome वाला जो egg है वो continue रहता है without fertilization, it will change into male. Okay, so therefore the females are diploid and males are haploid. Males में single set of chromosome है. This is called as haplodiploid sex determination system. In this system, the males produce sperms by mitosis. Is it clear to you what type of sex determination is there in the honeybees? Haplodiploid. Males are haploid, females are diploid. 2 sets of chromosome are present in the females, 1 set of chromosome is present in the males. So that's all for today. Keep in touch with me. Thank you for staying with me, for watching the video, and do the questions which is given in the box. MCQs are there, do them. You will be able to clear all the concept after completing the test. Thank you very much. Wait for the next video. Thank you so much.